नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल एम्बिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, वही क्लास 10th के, तो आज भी हम क्लास 10 को ही फोकस करेंगे। तो क्लास 10th का पहले लास्ट क्लास में हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ। तो पहले की हम दो टाइप्स पर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज द decomposition रिएक्शन। थर्ड वन इज द displacement reaction. Fourth one is the double displacement reaction. And the fifth one is the what? Redox reaction. I have already told you that redox means the reduction and oxidation. रिएक्शन। तो जैसे कि दोस्तों हम पहले फर्स्ट और सेकंड पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो देखेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस होना। सो द मीनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्प्लेस एनी एलिमेंट, एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लाइक मीन्स दैट व्हेन displacement reaction, first of all the definition. Displacement reaction are those reaction in which more reactive element displace less reactive element from its salt, or we can say that the compound means displacement reaction are those reaction in which the more reactive element displace the less reactive element from its compound, or we can from its salt. Okay, for an example, when zinc react with H2SO4, so which one is the salt? This one is the salt. So hydrogen is the element and zinc is also the element. So hydrogen is less reactive than zinc. So zinc displace hydrogen from its salt, means if ZnSO4, then what? Hydrogen gas. So in this reaction, when zinc react with the sulfuric acid, then zinc displace hydrogen from sulfuric acid and makes its own salt and displace hydrogen. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड या एलिमेंट से डिस्प्लेस कर देता है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। तो जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और अपना सोल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है। Okay, so we can say that this equation is an example of displacement reaction. The most important condition is that what? More reactive element displace less reactive element. This is the most important property of these types of reactions. ये एक most important property होती है इस टाइप की रिएक्शन की, कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है और जो हाई रिएक्टिव होता है वो अपना सोल्ट बना लेता है। ओके, यही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके,
This one okay. Now the next one is the what? Double displacement reaction. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? Double displacement reaction, D is the double displacement reaction, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ही पॉइंट होता है, इसमें ये मेन होता है कि इसमें क्या होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। मीन्स व्हाट? एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ion takes place, okay. In this reaction only this one is the important, mean exchange of ion take place like that, AB plus CD. When AB react with CD, AB is the compound and CD also the compound. When AB react with CD, then what will form? This compound react with this compound and this compound react with this compound. Exchange of ion, because A carry positive charge, B carry negative charge, and C carry positive charge and D carry negative charge. When AB or CD react, then this positive charge react with this negative charge and this positive charge react with this negative charge. So the required product, what will the required product will form? Means AD and plus what? CB. So we can say that in this reaction only what will happen? Only the exchange of ion takes place. Exchange of ion takes place. इसमें क्या होता है कि सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है, ओके। अब हम केमिकल इक्वेशन से बताते हैं। when BaCl2 means barium chloride, BARIUM, barium, CHLORIDE, barium chloride react with H2SO4, sulfuric acid. When barium chloride react with sulfuric acid, then what? BaSO4, barium sulfate, along with the 2HCl will formed. Is it clear? So this is also an example of double displacement reaction, because this one is the positive negative, this one is the positive negative, this positive react with this negative and this positive react with this negative, okay. So exchange of ion take place in this reaction. What? Exchange of ion takes place, and the most important property of this compound, most important characteristics, means this reaction is also known as precipitation reaction. Precipitation reaction. इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट क्या बनता है? एक प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर निकलता है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन one of the product is comes out in the form of the precipitate, okay. Means इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन, because one product is formed in the form of precipitate, PPT, precipitate, ओके। precipitate हम पहले ही बता चुके हैं कि precipitate क्या होता है? एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि किस में निकलता है? रिएक्शन के समय निकलता है। जब दो प्रोडक्ट बनते हैं तो इसमें ये इनसोल्यूबल होता है, प्रिसिपिटेट इनसोल्यूबल होता है और ये रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या निकलता है? प्रिसिपिटेट ही बनता है, तो इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। नाउ what is the reaction? What is the main property of this? Only the exchange of ions takes place, okay. I think this one correct also. Now the fifth one. Fifth reaction is the redox reaction. Redox means the reduction and oxidation reaction. Okay. Now oxidation reduction reaction. First of all, the redox reaction. How can you define the redox reaction? Redox reaction is defined as
redox reaction is defined as the combination of reduction and oxidation reaction means redox reaction is defined as the combination of reduction and oxidation reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen from the compound in oxidation, whereas addition of hydrogen and removal of oxygen from the compound in reduction. In simply we can say that A is an element. If the addition of oxygen, if A is an element and addition of oxygen, this one known as the oxidation and removal of hydrogen from an element or from any compound known as the what? Reduction. And in second step, addition of hydrogen, this one is the what? Reduction and addition of hydrogen is the reduction and removal of hydrogen is the oxidation. सो देखिए एक बार सिंपली देख लेते हैं क्या है ये. तो क्या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का. इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों रिएक्शन का रिडॉक्स, जिसमें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन wait. Removal of hydrogen, this one is the removal of hydrogen, addition of hydrogen, removal of oxygen. Okay, now in which the addition of oxygen and removal of hydrogen known as the what? This one is the removal of hydrogen, this one is also the oxidation. This one is the oxidation, removal of oxygen is the reduction also. ओके लिसन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है. जब कॉम्बिनेशन होगा तो हम कहेंगे कि इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. बात आती है पहले ऑक्सीडेशन की, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है. सेकेंड स्टेप में कहें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन. सिंपली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में ये रिएक्शन दी हुई है. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द डेफिनेशन इज डिफरेंट. हाउ? मीन्स if any element addition of electron, this one is the reduction, and what? And removal of electron, and this one is the what? Oxidation. इसमें एक छोटी सी बात होती है कि क्या, इसमें एक छोटी सी हम बात ध्यान में रखेंगे कि रिडक्शन के साइड इलेक्ट्रॉन हमेशा किस साइड में आएगा? रिएक्टेंट के साइड आता है, थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है ये, 10 से थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा इसको. देखो रिडक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा किस साइड में आएगा? रिएक्टेंट के साइड आएगा. जब हम ऐड कर रहे हैं तो किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ ऐड कर रहे हैं. तो रिएक्टेंट के साइड अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो समझ लेना रिडक्शन है,
और प्रोडक्ट के साइड अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो समझ लेना क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कंपाउंड फ्रॉम एन एलिमेंट नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट किसका था, रिडॉक्स रिएक्शन का था। तो इसमें एक अलग टर्म, हम जनरल इक्वेशन की बात कहें तो एक जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं इसमें, ओके। जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन हम बात करते हैं A प्लस बी ओ देन AO प्लस बी। सिंपली देखते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। देन A से हमारा इधर क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया। A के साथ पहले A अकेला था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस वन इज द व्हाट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, अब तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ओके। सिंपली अगर सेकंड टर्म में इन टर्म ऑफ व्हाट, BH to AH and plus B in term of hydrogen, this one in term of oxygen, where is in term of hydrogen, in term of hydrogen, okay। now सिंपल A प्लस H, अब यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज द रिडक्शन, व्हाट, रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन। दोनों जस्ट डिफरेंट हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो गया, ओके। यहाँ से A था और यहाँ पर AH हो गया, जुड़ गया हाइड्रोजन तो रिडक्शन हो गया, H जुड़ा हुआ था अब यहाँ से हट गया तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब सिंपल एक बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक नया टर्म आता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है एक्चुअली में। ऑक्सीडाइजिंग की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम बात करें एजेंट एक्चुअली में होता क्या है, एजेंट का काम होता है किसी भी कंपनी या किसी के लिए उसके बेनिफिट के लिए क्या करना, वर्क करना। तो ऑक्सीडाइजिंग की मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कोई भी एजेंट जो किस में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग में हेल्प करेगा, उसको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। तो कब करेगा, माना कि यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ओके। ये क्या कर रहा है, ये अपना ऑक्सीजन किसको दे रहा है, OA को दे रहा है। BO के पास ऑक्सीजन है और ये क्या कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है, इसको ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प कर रहा है A को, क्योंकि A को जब दे दिया AO बन गया, तो ये निकाल रहा है ऑक्सीजन। तो जब ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। सिंपली इसमें क्या हो रहा है, यहां पर देखो इसमें आ गया क्या, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहां पर अगर रिडक्शन अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपली इसकी बात देखते हैं, यहां से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीजन ले रहा है, किसी और से ले रहा है, जब रिसीव कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है प्रोसेस, पर यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ से A से इधर जाने पर ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये वाला रिड्यूसिंग होगा, और यहाँ से रिडक्शन होगा, यहाँ से यहाँ पर तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, जस्ट अपोजिट होता है, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारी 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन थी जो हम की सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ भी किसी को कोई भी नया टॉपिक्स जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, किसमें, हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 1 वीक के अंदर हम उस पर वीडियो बनाएं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ओके। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो उसी जब तक के लिए जय हिंद, ओके। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमको भी सपोर्ट मिलता रहेगा और हमको एक एनर्जी मिलती रहेगी ताकि हमें आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें। तो कोशिश रहेगी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेके आए और